computer network classroom. Now we're going to start the next topic. I think yesterday we have done this particular topic, that is error control, okay, and flow control, okay. But regarding this error control, we had a very short discussion, and we came to know that okay, at each and every node, at each and every step, we need to assure that, or we need to make sure that there's the data which we are receiving, every layer will make sure that okay, the data which they are receiving is error free data, okay. If any of the layer will proceed the data with error, then what will happen, that error will be propagated and becomes a bigger one, okay, and then error will generate another error, and then so on, okay. So in this way we have to make sure that okay, there is no error in your data, in your frame. There's no error in your data, okay, simply, yeah, your data must be error free, okay. So ये हम लोग क्या पढ़े थे, आपको मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा दूं कि हम लोग ना डेटा लिंक लेयर की सर्विसेज पढ़े थे, और जिसकी सर्विसेज है उसके अंदर फ्रेमिंग एक हम लोग ने पढ़ा, एंड इन दिस फ्रेमिंग वी हैव गॉन थ्रू द बाइट ओरिएंटेड फ्रेमिंग एंड बिट ओरिएंटेड फ्रेमिंग. So those small topics is okay. Then after that we came to know about flow control. The flow between the sender and the receiver has to be controlled, so that आपका सेंडर ऐसा ना हो कि ज़्यादा पैकेट भेजे, या आपका रिसीवर ऐसा ना हो कि ये पैकेट को कंज्यूम नहीं कर पाए. So we took an example of the producer and consumer problem that we have seen in the operating system, okay. It is almost same as that only. Then we discuss about the error control, and error has to be removed at each and every layer, so that your data must be error free, okay. Now according to the syllabus, okay, according to the syllabus, we need to learn something, in quite detail about the error detection and correction. First of all, let me show you the syllabus first, okay. So this is we were DLL डिज़ाइन इश्यूज, ये हमारे के सर्विसेज है. देन फ्रेमिंग, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, ये हम लोगों ने यहाँ तक देखा है अभी, ठीक है. उसके बाद में वी हैव टॉपिक दैट इज एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म, ओके. सो विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज एरर डिटेक्शन करेक्शन, बिकॉज बीच में और भी टॉपिक थे, उसके उसके हिसाब से मैंने स्लाइड बनाया था. तो कंजेशन कंट्रोल वाला वगैरह यहाँ पर ऐड किया था उन लोगों ने, बट कंजेशन कंट्रोल ऑलरेडी आगे आने वाला है. अब मैं आपको बताता हूँ, कंजेशन कंट्रोल आगे कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा. कंजेशन कंट्रोल, सी दिस congestion control algorithms, okay. So this topic is already there in the chapter number 4, okay. So we will not repeat that particular topic again. तो यहाँ पर हम लोग directly start with the error detection and correction, okay. So we are not going to discuss about this congestion control, because जब topic आएगा तब हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, okay. I think it is clear to everyone. Okay, what we have to learn right now is error detection and correction. Okay, तो ये connection oriented connectionless के बारे में हम लोगों ने already पढ़ा हुआ है. Then data link layer protocol. Okay, these protocols are also very important. The first one is simple protocol, second is stop and wait protocol, third is go back and protocol, and the fourth one is selective repeat protocol. Okay, so ये भी हमारे syllabus में है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे. These are called as elementary data link protocol. Okay, these protocols are called as एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल, ओके. तो उसमें स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, उसमें सिंपल इन लोग ने ऐड नहीं किया है. तो सिंपल, स्टॉप एंड वेट, स्लाइडिंग विंडो का गो बैक एंड होता है और सेलेक्टिव रिपीट होता है, ठीक है. तो स्लाइडिंग विंडो के अंदर एक स्लाइडिंग जैसा अपना होता है ना, एक विंडो होती है, उसकी साइज मतलब पूरा उसका है मेरा प्रोटोकॉल है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. सो दीज प्रोटोकॉल्स आर दी एलिमेंट्री डेटा लिंक प्रोटोकॉल, ओके. तो इसके बाद में हम लोग वही कवर करेंगे. तो जब हम लोग ने लास्ट सेशन में जब इसके बारे में डिस्कस किया है, दैट इज अबाउट द एरर कंट्रोल, एंड वी आर टेलिंग दैट, एंड वी आर मेंशनिंग दैट के भाई साहब वी हैव टू टेक केयर ऑफ द एरर्स, ओके, because our data may pass through various places, okay, from various field, okay. So my data may be corrupted, okay, when it is being received by the later node, okay. तो कोई आगे वाला नोड अगर जा रहा है तो उसके पास में हो सकता है कि एरर आ जाए. सो वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस एरर कंट्रोल, कि भाई हमको एरर लेके नहीं जाना है आगे, लेकिन बोलते हैं ना
क्या बोलते हैं हम लोग अपने इसमें कि भाई केटी लेके नहीं जाना है, कि अगर केटी रही तो फिर आगे चल के वो केटी से केटी मिलती है फिर, और तो वैसे ही आपका ये एरर है, ठीक है। एक एक एरर आया तो एक एरर से दूसरा एरर आपका जनरेट होता है। इन द सेम वे बग्स फॉलो बग्स, ओके। सो ये बारे में हम लोग को अभी करना है डिस्कस, ओके। तो हाउ वी कैन डिटेक्ट एन एरर, ओके, and how that particular error can be corrected also, because the error controlling and detection and sorry error detection and controlling mechanism, in this particular mechanism, it is not limited to just detect the error, okay. We have lot of techniques and we have various techniques from which you can detect the error and you can correct the error also, okay. So we have some techniques from which you can simply detect the error, you cannot correct the error from those techniques, okay. So you need to use, and you have to use different techniques in order to correct the errors, okay. People are understanding, okay. समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोग को? अरे बाबा समझ में आ रहा है कि नहीं? वाह, सब सो रहे सुबह में। जकी, हाँ, अरे भाई कुछ तो रिप्लाई हाँ हूँ, कुछ तो नहीं। हाउ विल कम टू नो दैट पीपल्स आर जाग रहे हो? ऐसा मत करो, रिप्लाई करो, एटलीस्ट रिप्लाई करो। देखो अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया। आई अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम रिप्लाई कर दो। आपने तो अभी अभी बोला ना, मैं कब से बोल रहा हूँ, आवाज दे रहा हूँ आप लोग को। मैं भी टेंशन में आ जाता हूँ ना कि भाई किधर है अभी लोग। ऐसा तो नहीं कि उठे लेक्चर चालू किए वापस से सो गए ग्रुप, नॉट लाइक दैट। होप सो, ओके। So now let us start. So with this base, now we are going to start the topic, that is error detection and correction. Again, I'm asking you, this particular topic is very very important, okay? And we have lot of other questions from this topic, okay? So हम लोग अब आगे चलते हैं हमारे error detection mechanism, because ये अभी तो टॉपिक हमारे सिलेबस में रहा नहीं, मतलब आगे चल के आएगा तो अभी इसको रिपीट करके कोई फायदा नहीं। एंड दिस टॉपिक हम लोग पहले वाला टॉपिक करेंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी syllabus, according to the syllabus, it is asking to complete the error detection and correction first, and after that we will go through the elementary data link protocol, okay। तो जो ये elementary data link protocols है तो हम लोग इनको बाद में करेंगे। सीधे से सिंपल प्रोटोकॉल, स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, उसके बाद में एच डी एल सी, देखो पहले पहले के इसमें था, लेकिन एच डी एल सी अब नहीं है, ओके। तो एच डी एल सी का भी बहुत बड़ा प्रोटोकॉल था, उसमें दो प्रोटोकॉल थे एच डी एल सी के। मतलब एच डी एल सी एक था, दैट इज हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, इट वॉज अ बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी पॉइंट लिंक। मतलब के पॉइंट टू पॉइंट एक जगह से दूसरी जगह, और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट एक जगह से मल्टीपल जगह, तो इसके लिए ये वाला प्रोटोकॉल यूज होता था। कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसफर मोड, देन उसके फ्रेमिंग, आई फ्रेम, एस फ्रेम, यू फ्रेम, तीनों के अलग अलग काम, तीनों के अलग अलग फील्ड। देन आफ्टर दैट हर एक का एक्सप्लेनेशन। देन उसके बाद में एक और प्रोटोकॉल था, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पीपीपी प्रोटोकॉल। दिस इज ओनली यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट वाला। एचडीएलसी जो था आपका, इट वाज यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। जस्ट रिमेंबर द डिफरेंस। आपके सिलेबस में नहीं आएगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी जस्ट बता रहा हूँ। सर्विसेज जो कि ट्रिपल पी आपको प्रोवाइड करता है, ये बहुत सारी सर्विसेज, और जो नहीं प्रोवाइड करता है वो ये सारी। इसकी फ्रेमिंग इस तरह की होती है, इसका फ्रेम फॉर्मेट इस तरीके से होता है। देन उसके बाद में उसके सारे फील्ड का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद में उसके अंदर आपके ट्रिपल पी के अंदर जो प्रोटोकॉल होते हैं, जिसको हम लोग लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं, उसको बोलते हैं LCP, लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसमें होता है ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल दो टाइप के होते हैं, पैप और चैप। पैप जो है तो होता है वो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है। चैप होता है वो जो चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारी चीजें पढ़ने से आप लोग बच गए, ठीक है। तो ये सारा का सारा आपको अभी फिलहाल नहीं है, ठीक है। और अगर इनकेस अगर कभी कुछ अगर कहीं से पता चला तो आपको अभी स्लाइड में से पढ़ भी सकते हैं, हालांकि आएगा नहीं बिकॉज सिलेबस में नहीं है, तो फिर कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक। देखो हमको टॉपिक पे आते थे कितना टाइम लग गया, हम लोग थोड़ा सा हमारा टाइम वहाँ पे वेस्ट हो गया। ओके, सो FI
So now going to start with the topic that is error detection and correction. And if you will see the syllabus, then in syllabus also we have not so many things in the error detection and correction. Okay, we have Hamming code. I think you have done this Hamming code in the fourth or the third semester. आप लोगों ने कहीं तो किया ये DLDA का आपका DLCOA में तो कहीं पे आपने किया ये Hamming code. प्लीज रिस्पॉन्ड, ये हुआ है आप लोग का Hamming code? Hamming code हुआ है? Hamming code, Hamming Yes, distance, sir. how? Hello, yes? आवाज नहीं आई? Yes, sir. हुआ है Hamming code, मतलब एटलीस्ट कम से कम ये वाला टॉपिक हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। और है भी बहुत सिंपल है। इसमें कुछ 3 फील्ड होती है, इधर आपकी डेटा फील्ड होती है, पैरिटी फील्ड होती है, और आपको कुछ कैलकुलेशन करके उसको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो उसके अंदर यू कैन फाइंड आउट दी एरर, मतलब एरर किस जगह पर है वो आप डिटेक्ट कर सकते हो बेसिकली। तो बहरहाल जब टाइम अगर पड़ा तो हम लोग वो लेंगे, लेकिन बाद में उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं। पहले थोड़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम लोग को पहले वो कलेक्ट करना है, ठीक है। सो देखो वापस से हम लोग आगे इधर ही चलो। तो मैं कभी भी कोई टॉपिक अगर पढ़ता हूँ तो वो टॉपिक का मैं थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स, उसके जो भी इंफॉर्मेशन आगे पीछे ऊपर नीचे की सारी इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। So error detection, we cannot directly come to the error detection and correction first, okay. So first of all we have to introduce the error detection and correction topic, okay. So basically data transfer को हम लोग जो चाहिए, जो ट्रांसफर चाहिए, so we want that particular transfer with the 100% accuracy, okay. So we don't want our data to be loose, okay. We don't want our data to be corrupted data, okay. If the data will be corrupted, then our data which the system is presenting to us, okay, so that data will be corrupted and some part of that particular data will be missing, okay. तो हम नहीं चाहते कि हमारा डेटा करप्टेड आए, ठीक है। तो इसके लिए अगर कभी कोई करप्टेड फ्रेम आता है तो क्या करना है हम लोग को, उसको अपने लेयर्स के अंदर इसको रिजॉल्व करना है, ओके। सो व्हाट इज आवर टास्क, वी हैव टू in OSI layers only we have to implement those techniques and those correction techniques so that that error will be resolved at that place only, okay। हमारे पास में यानी एप्लीकेशन लेयर के पास में आने तक डेटा आपका पूरा मतलब के विदाउट एरर के आना चाहिए, ओके। हाँ, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर कभी अगर डेटा एरर फ्री नहीं है और डेटा में अगर एरर है तो क्या करना पड़ेगा आपको, रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा, ठीक है। और रीट्रांसमिशन बहुत महंगा पड़ता है भाई साहब, बहुत महंगा पड़ता है। तो ये रीट्रांसमिशन हमको करना नहीं है, ठीक है। So this is just a simple introduction about the error detection. Now coming to the types of error, as I told you in the last lecture only that we have 2 types of error, okay. We have 2 types of error. One is the single bit error and the second is the burst error, okay. This is most important, this is very important one, ठीक है। वाइवा क्वेश्चन है, वाइवा क्वेश्चंस है, पूछते हैं व्हाट इज एरर, ओके। सो एरर क्या है तो आपको वही बताओ, ठीक है। अच्छा एरर क्या है, you have a data 1010, you have data, ठीक है, okay, and this is at the sender side, okay, when it will travel through the transmission media and it will reach at the receiver side, okay. So that some kind of noise, some kind of noise is added into the data, okay। आपके डेटा के अंदर कुछ तो नॉइज ऐड हो गया, मतलब आपके सिग्नल्स में your data is nothing but a signal, okay, I call it as a signal, okay। So this is my signal which is traveling from this transmission media, okay। So the signal के साथ में क्या होता है, कभी कभी कुछ नॉइज ऐड हो जाता है, ठीक है। तो जब ये नॉइज, एक सेकंड चिल्लाना दुनिया भर का है, okay। So signal plus noise, okay। So this is the data which is traveling from the transmission media is nothing but a signal and some kind of additional bits are added into the data, that is the noise, okay। And why this particular noise is being added, आपका डेटा कभी कहीं से जा रहा है, कहीं पर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है EMF, ओके। तो वहां से डेटा कुछ ऐड हो गया, कहीं से कोई दूसरी लाइन जा रही है, दूसरी लाइन का डेटा कुछ ऐड हो गया, कुछ नॉइज ऐड हो गया, कहीं से कोई वेव फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। हो सकता है कि आप अगर कभी वाइड मीडिया यूज कर रहे हो सो इट्स ओके, लेकिन फिर भी अगर वो आपका वायर, आपका केबल किसी ऐसी जगह से पास हो रहा है जहाँ पर दूसरे और भी केबल्स है, जहाँ पर आपका कुछ ऐसी अलग फील्ड है, ठीक है,
तो वो फील्ड से डेटा इफेक्ट होता है आपका, और कुछ नॉर्मल बिट्स मतलब के जिसको हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल बिट्स और बोलते हैं हम लोग के less number of noise will be added to your data. So simple the thing is that के आपका सिग्नल जा रहा है, मतलब आपका डेटा जा रहा है और उसके अंदर कुछ नॉइज ऐड हो जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आपका ये शेप था, मैं आपको इसमें बताऊँ अभी. हाँ, सो इमेजिन कर लो ये आपका डेटा है, ठीक है. एट द सेंटर साइड में आपके पास में डेटा है, ठीक है. तो ये आपका है, ऐसा कुछ डेटा है. देखो मैं ऐसा बना रहा हूँ बिकॉज आपका डेटा डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर, ठीक है. ये आपका डेटा है, ठीक है. अब ये डेटा आपका सेंटर साइड में था, आपने इसको रिसीवर साइड में भेजा. अब रिसीवर के पास में जब ये डेटा आया तो ये कुछ ऐसा हो गया. यहाँ पे कुछ तो चेंजेस हो गए, ठीक है. मतलब आपका ये जो था यहाँ पर ये 10110110 ऐसे कुछ होता है ना डेटा आपका डिजिटल फॉर्म में. और फिर आपका यहाँ पर क्या होगा, डेटा 10101110 ऐसा ऐसे फिर कुछ डेटा हो गया, ठीक है. यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर डेटा होंगे तो आपको डेटा कुछ आपको चेंज नजर आएगा, ठीक है. तो यहाँ पर क्या हो गया, वी कॉल इट एज अ चेंज इन शेप. ओके, चेंज इन शेप ऑफ द सिग्नल, ठीक है. आपका जो सिग्नल है उसका शेप क्या हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है. when the shape of the signal gets changed, we can say that some kind of error or some kind of noise has been added into the data. okay, और उस पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलेंगे फिर कि भाई आपके डेटा में क्या आ गया है, एरर आ गया है. ओके, सो अगर एरर आया है तो एरर को फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू डिटेक्ट द एरर, ठीक है. सो वी हैव सम टेक्निक्स 1 2 3 4 में भी जितनी भी है तो उसकी वजह से हम डिटेक्शन कर सकते हैं. And we have some technique which can correct the error. Okay, so we have some technique which can correct the errors. Okay, so now let us move again and we'll see how it is done. So basically errors के बारे में पहले हम लोगों ने सीखा. What is error? Okay, I hope सबको समझा error क्या है. Change in the shape of the signal. Okay, अब आपका सिग्नल जो भी जैसे भी जा रहा है तो आपका उसका शेप चेंज होना. शेप चेंज होना मतलब बेसिकली उसको आप सिग्नल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो. अगर बोलूंगा मैं 1011 था और ये रिसीवर के पास जाते आते 1001 हो गया तो ये इसमें भी आपका क्या आ गया, एरर आ गया, ठीक है. तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई देयर इज एन एरर इन योर डेटा. ओके, सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर. एज आई टोल्ड यू दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर. वन इज द सिंगल बिट एरर. ओके, वी हैव अ सिंगल बिट एरर एंड वी हैव अ burst error. Okay, as I told you that if only one bit of the given data unit is changed from 1 to 0 or from 0 to 1, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया 1011 का डेटा चेंज हो गया जब रिसीवर के पास पहुंचा, then it becomes 1001. this वाला डेटा, this particular data has been changed. Okay, ये 1 का क्या हो गया, 0 हो गया. only one bit is changed. Okay, you know because we are looking at the data right now, so we can easily say that only one bit has changed. Okay, सो ये जो इस टाइप के जो एरर्स होते हैं तो ये भी तो आपका एरर ही है. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी कॉल्ड एज अ सिंगल बिट एरर. ओके, this type of error can be called as a single bit error. Okay, in the second case if we have data 10111 करके आपका डेटा था, ठीक है. you are having this data at the center side. when this particular data has been sent to the receiver, तो receiver receives the data as 01110. ठीक है, तो चलो ये डेटा में हमारे जो बिट्स कौन कौन से चेंज हुए हैं, हमारे ये वाला बिट्स चेंज हुआ है, ये वाला बिट्स चेंज हुआ है और ये वाला बिट्स चेंज हुआ है. ठीक है, तो आउट ऑफ दीज 5 बिट्स हमारे 2 बिट अनचेंज रहे, बाकी 3 बिट हमारे चेंज हो गए. ठीक है, सो व्हाट वी कैन से means that 2 or more bits in the data unit have changed from 1 to 0 or from 0 to 1. okay, so अगर कभी 2 से ज़्यादा अगर बिट में एरर आपको मिलता है, इसका मतलब ये एरर कौन सा टाइप का एरर है, बर्स्ट एरर है. ओके, so single bit error only one bit is changed from 0 to 1 or 1 to 0, and burst error 2 or more bits in the data unit have changed from 1 to 0 or 0 to 1. आई होप समझ में आया होगा आप लोग को. सिंपल कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ एरर में. ठीक है, all these things are not mentioned in your syllabus, but still I want that if you are learning the error detection and correction mechanism, then you must understand first this thing, that what are the different types of error first. Okay,
So this is just an example in order to show you that what is single bit error and what is burst error. Okay, as you can see over here कि यहाँ पर आप लोग देखो, ये आपका डेटा है जो कि हम लोग ने सेंड किए 0000010. It was the error. Okay, when this data has been received by the receiver, then this data becomes 0000. ये वाला 0 हो गया 1, मतलब ये यहाँ पर आपके आ गई प्रॉब्लम, मतलब यहाँ पे एरर, एक यहाँ पर एक नॉइज ऐड हो गया, ठीक है. और ये 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, ठीक है. So only one bit has changed. We can call it as a single bit error, right? And here you can see we were having the data which at the center side we were trying to send. It was 01001 जो भी डेटा था. यहाँ पर देखो हमारा एक बिट चेंज हुआ, दूसरा बिट यहाँ चेंज हुआ, तीसरा बिट यहाँ चेंज हुआ और चौथा बिट हमारा यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है. सो मोर देन 2 बिट्स हैव बीन चेंज. टोटल कितने बिट्स हमारे चेंज हो गए हैं? 4 बिट्स चेंज हो गए. सो दैट काइंड ऑफ एरर कैन बी टर्म्ड एज दी बर्स्ट टाइप एरर, ठीक है, या बर्स्ट एरर, ठीक है. तो बर्स्ट का मतलब तो आप लोग को पता ही है. आगे बढ़ते हैं. We have a redundancy concept. Okay, you need to understand this redundancy in order to understand the other the later topic also. You know, this is a very basic concept in the field of error detection and correction. Okay, you know, redundancy is something, or we can say the central concept in the error detection and correction of errors. Why? Because in order to find the error we need to add some extra bits. Okay, जैसे देखो आपका फॉर एग्जांपल डेटा है, जैसे मैंने आप लोग को उस टाइम पे भी बताया था, कुछ बिट ऐड करते हैं, सेंडर साइड पे कुछ बिट्स ऐड करते हैं और रिसीवर साइड पे उन बिट्स को निकाल लेते हैं, एंड दोज बिट्स आर कॉल्ड एज द एक्स्ट्रा बिट्स. ओके, और वो एक्स्ट्रा बिट्स को जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग दोज एक्स्ट्रा बिट्स इनटू द डेटा इज कॉल्ड एज रिडंडेंसी, ठीक है. तो ये जो रिडंडेंसी वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, तो उसके अंदर हम लोग यही ट्राई करते हैं कि हम लोग कुछ एक एक्स्ट्रा बिट हमारे सेंडर साइड पे डेटा में ऐड करें. फॉर एग्जांपल आई वाज हैविंग दिस डेटा, मेरा कर्सर दिखता नहीं है यार, यहाँ पे इतना बारीक कर्सर दिया है इसमें, पेन का कर्सर भी चेंज नहीं कर सकते. कोई प्रोविजन ही नहीं है क्या? है क्या कुछ प्रोविजन? है किसी को पता है? ये इतना बारीक वाला जो है एकदम डॉट करके आ रहा है, आपको नजर आ रहा है ये डॉट? हाइलाइटर तो खाली बस हाईलाइट करेगा इसमें. चलो हाइलाइटर से भी हम लोग काम कर सकते हैं ना. हाँ चलो ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं. ओके, so we were talking about the redundancy. Okay, so we have data something like that कि 1011 हमारे पास डेटा था. आई थिंक आप लोग को नजर आ रहा है ये येलो कलर दिख रहा है आप लोग को? येलो कलर प्रॉपर्ली? Yes sir. सर रेड कलर ले लो. रेड कलर ले लूं? चलो ठीक है, आप जैसा बोलते हैं. अरे भाई ले गए यार. अरे हाँ ना, बराबर, अच्छे कलर तो है हमारे पास में. हाँ चलो ठीक है, ये भी ना बात. वापस से हम लोग उसको शिफ्ट F5 करते हैं और ये ले लेते हैं, और पेन के बजाय हमारा पेन टेबलेट नाटक कर रहे हैं, हाइलाइटर, ठीक है. Okay, so we have data at the center side. So this is my center side and I have data 1011. Okay, so what I will do, I will add some extra bit. Okay, अब वो concept और वो logic जो भी हो आगे चल के, so that is the different thing. Okay, but what is the logic behind redundancy is that we have to add an extra bit. Okay, you know, we are not talking about the one bit only. Okay, it may be one bit or maybe more than one bits. Okay, so we are just adding those extra bits. I'm talking about the bits. Okay, so see here, यहाँ पर ये है bits है, ठीक है. So we are talking about the extra bits. It may be a single bit or maybe more than 2 bits. Okay, तो ये आपके number of bits इसके अंदर हम लोग extra क्या करेंगे, add करेंगे. Okay,
और अपने अपने लॉजिक से ऐड करेंगे सो दैट वी कैन रिमूव दोज एक्स्ट्रा बिट एट द रिसीवर साइड। ओके, ऐसा ना हो कि हम लोगों ने मतलब के ऐड तो कर ली है लेकिन अब रिसीवर के टाइम पे अब समझ में नहीं आ रहा भाई कौन से बिट हम लोग ने ऐड किए थे। So it should not be like that. Okay, so the concept is that if this is your data field, okay, okay, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ एक एक्स्ट्रा बिट हम लोग ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने 10 इसमें ऐड कर, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ये ऐड करने के बाद में जब ये आपका रिसीवर के पास पहुंचेगा, तो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो आपका डेटा फॉर एग्जांपल अगर सेम है 1011 और यहाँ पर आपका 10 है, तो इससे कुछ ना कुछ एक क्या बोलते हैं टेक्निक्स है, जैसे कि चेकसम टेक्निक है, सीआरसी टेक्निक है, फ्रॉम विच हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ कैलकुलेशन करेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह करके इसका कुछ एक वैल्यू निकालेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग चेकसम। आगे चल के आने वाला है आप लोग को, तो कुछ वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू निकाल के फिर वो हम लोग रिसीवर को भेज देंगे। फॉर एग्जांपल ये हम लोग ने पूरे की एक वैल्यू निकाली, उसका चेकसम निकाला और उसका एक कोड था, उसको सी में डाल के हम लोग ने भेज दिया। अब ये हम लोग ने रिसीवर को भेज दिया। अब रिसीवर क्या करेगा, ये सी को अपने पास में रखेगा, इसका भी ये भी सेम प्रोसीजर जो सेंडर ने किया है वो भी करेगा, इसका एक कोड निकालेगा और वो कोड और ये कोड अगर दोनों मैच करेगा तो मतलब आपका डेटा क्या है, ओके, ठीक है। सो ये एक लॉजिक हुआ जो कि चेकसम में यूज होता है, ठीक है। सो रिडंडेंसी इज द कॉन्सेप्ट इन विच basically it is a very central concept, or we can say very fundamental concept in the error detection and correction mechanism. Okay, in order to find the error, what we used to do, we used to add some extra bits into the data that we have added over here. You can see मैंने जैसे randomly 2 bits मैंने ऐड कर लिया, ये randomly नहीं ऐड करते हैं बल्कि इनके पीछे कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये मैजिक वाली चीज नहीं है बल्कि लॉजिक वाली चीज है, ठीक है। So in order to complete some logic, we add some extra bit at the sender side, and at the receiver side those bits will be removed. Okay, those bits will be removed, okay, by that logic only, okay। जो लॉजिक हम लोग ने सेंटर पे अप्लाई किया वही रिसीवर के पास भी अप्लाई करेंगे, and we will remove all those extra bits, okay, and will receive that data, ठीक है। और अगर इन केस कभी अगर कुछ एरर इसमें ऐड हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये 1 का 0 हो गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पता चल जाएगा with the help of this redundant bits, these bits which are added at the sender side and removed at the receiver side, these bits are called as redundant bits, okay। तो ये बिट्स से हम लोग को पता चल जाएगा कि हमारा डेटा करप्टेड है या डेटा करप्टेड नहीं है, ओके। सो विद दिस कॉन्सेप्ट वी कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट द एरर्स। आगे चल के आप लोग को खुद ब खुद समझ में आएगा ये चीज, ओके। तो डिटेक्शन वर्सेस मैकेनिज्म, एज यू कैन सी कि आपका डिटेक्शन और करेक्शन आर टू डिफरेंट थिंग, ओके। टू डिफरेंट थिंग मींस in detection we have the process of detection only, मतलब we are going to detect, for example आपका ये 1011 का चेंज होके हो गया है 1100 हो गया, ठीक है। तो भाई साहब इतना खाली बता सकते हैं हम कि इसमें एरर है, इसमें क्या है, एरर है। अब एरर कहाँ पर है, कौन से बिट में है, किस टाइप का एरर है, सिंगल बिट है, बर्स्ट एरर है, that we are not going to explain, okay। The error detection mechanism will let you know that the data is corrupted or not, okay। The data is corrupted or not, that will let you know only that thing only, ठीक है। So error detection mechanism आपको खाली डिटेक्ट करके देगा, करेक्शन करने का काम उसका नहीं है, ठीक है। एरर करेक्शन मैकेनिज्म ऐसे होते हैं जो एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हैं और करेक्ट भी कर सकते हैं। they are having mechanism from which we can correct the error at which place। ये 1011 था, ये 1001 हो गया, तो कौन से बिट पे एरर है उसको करेक्ट करना है, तो एक्चुअल बिट क्या था, तो एवरीथिंग ये आपको करेक्शन करके देगा। एंड हैमिंग कोड इज वन ऑफ द एरर करेक्शन मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। सो एरर डिटेक्शन करेक्शन के बारे में देन आते हैं अभी कोडिंग, ठीक है। अब देखो आपको ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे पढ़ने पड़ेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सीआरसी, चेकसम, ये सब कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको ये चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें से पहला कॉन्सेप्ट हम लोग ने पढ़ा दैट इज रिडंडेंसी, ओके, मीन्स एडिंग रिडंडेंट बिट्स, adding some extra bit at the sender side and removing those extra bit at the receiver side, and these extra bits are called as redundant bits, okay। I hope you people are understanding, if not then please let me know, we can repeat the topic। Now we have next topic that is coding, okay। How we can achieve the redundancy,
अब रिडंडेंसी तो हम लोगों ने बोला भाई चलो एरर डिटेक्ट करना है, करेक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग को रिडंडेंसी फंडामेंटल जो रिडंडेंसी हमारा जो वो है कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि रिडंडेंसी, हाउ वी कैन अचीव द रिडंडेंसी, ओके। सो वी हैव अ सॉल्यूशन, we can achieve the redundancy using the various coding scheme, okay. We have two types of coding, like one is the block coding and second is the convolution coding, okay. Actually हमारे पास में जो अभी है टॉपिक वो ब्लॉक कोडिंग के अंदर आते हैं, कन्वोल्यूशन कोडिंग में हमारे पास में कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट के redundancy can be achieved with the help of the various coding scheme, and different coding schemes are block coding and convolution coding. In block coding we are going to learn the different types of checksums या CRC, वो सारी कोडिंग आपकी ब्लॉक कोडिंग में आती है। साइक्लिक कोडिंग, पैरिटी चेक कोडिंग, ठीक है, सब आपका ब्लॉक कोडिंग में आता है। और कन्वोल्यूशन कोडिंग में वो अलग ही आता है, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक कोडिंग। अब ब्लॉक कोडिंग के अंदर हम लोग आए यहाँ पर, ठीक है। what we used to do in the block coding, we divide our message into the blocks। क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हम अपने मैसेज को क्या करेंगे, ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे। बिकॉज देखो, इफ यू हैव अ वीडियो, ओके, इफ यू हैव अ वीडियो ऑफ 100 MB, देन यू आर नॉट गोइंग टू सेंड दैट 100 MB एज इट इज, ओके। आप ऐसे कैसे उसको भेजने वाले नहीं, आप क्या करोगे, उसको डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जो डिवाइड करेंगे हम लोग, उसको हम लोग ने बोला कि बीच और हमारे ब्लॉक्स है, ठीक है। सो मे बी यू कैन कंसिडर इन दिस वे ऑल्सो। न्यू पेज कहाँ से लोड है, चलो रब कर दिए डायरेक्टली। हाँ, तो हम लोग कर रहे थे, फॉर एग्जांपल ये हमारा डेटा, ठीक है, दिस इज माय वीडियो फाइल। अब दिस इज माय वीडियो फाइल, so I will divide it into number of part, okay, so I will call it as a blocks, okay। तो मैंने इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, okay। दिस इज माय ब्लॉक 1, this is my block 2, this is my block 3 and this is my block 4, okay। so in I have divided that particular video into the 4 blocks, okay। अब भाई सब क्या क्या बोलते जाते हैं हम लोग देखते रहते हैं। ईच ऑफ द के बिट्स कॉल्ड द डेटा वर्ड, ओके। हर जो ब्लॉक्स रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो ये चीज आप लोग को बहुत काम में आने वाली है, इसके लिए अच्छे से इसको पढ़ो। हर ब्लॉक को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, डेटा वर्ड, ठीक है। तो दिस इज माय डेटा वर्ड, तो ये हमारा डेटा वर्ड है। दिस इज ऑल्सो माई डेटा वर्ड, दिस इज ऑल्सो डेटा वर्ड, दिस इज ऑल्सो डेटा वर्ड, ओके। सो आई हैव डिवाइडेड माई डेटा, माई मैसेज इनटू द 4 blocks, okay। these are the blocks, okay। I will write over here, these are the blocks, okay। ये 4 मेरे ब्लॉक्स है, इनको मैंने 4 ब्लॉक्स है, इसको मैं बोलूंगा डेटा वर्ड, ठीक है। उसके बाद में वी ऐड आर रिडंडेंट बिट्स टू ईच ब्लॉक टू मेक द लेंथ n इक्वल्स टू k प्लस r। देखो नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल असाइन अ यूनिट, इसको मैं एक यूनिट असाइन करता हूँ। ये मेरा k है, ये भी मेरा k है, ये k है, ये k है। एज वी आर हैविंग 4 ब्लॉक्स, आई कैन कॉल इट एज अ k1, k2, k3 एंड k4, ओके। तो अब इसमें क्या करूंगा, मैं एक एक रिडंडेंट बिट ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल k1 प्लस r, एक रिडंडेंट बिट ऐड किया, तो आई विल गेट द another data word, okay, and I will call that particular data word as a code word, जिसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर C से हम लोग बोलेंगे, नहीं सॉरी n बोलेंगे, ठीक है। तो n इक्वल्स टू k1 प्लस r। अभी आपका n क्या है, दिस इज नथिंग बट द कोड वर्ड। आप लोग बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सो माय दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक, ओके। तो मेरा ब्लॉक k1, ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ब्लॉक k1 प्लस सम रिडंडेंट बिट, the bits which can be reduced which can be removed at the receiver side. The redundant bits are always added at the sender side and these are removed at the receiver side, okay। so those are called as redundant bits, okay, and these redundant bits are denoted as a simple r, ठीक है, मतलब small r, ठीक है। so मेरा जो एक डेटा वर्ड था, तो आई हैव एडेड अच्छा, मैं पूरे इसके अंदर एक ही डेटा मतलब आर ऐड नहीं कर रहा हूँ कि k1 प्लस k2 प्लस k3 k प्लस k4 प्लस r, ऐसा नहीं, बल्कि हर डेटा वर्ड के अंदर मैं एक रिडंडेंट बिट ऐड करूंगा, ठीक है। बिकॉज आई एम गोइंग टू सेंड दिस पर्टिकुलर डेटा वर्ड सेपरेटली, इसको सेपरेटली, इसको सेपरेटली एंड इसको सेपरेटली। सो आई एम सेंडिंग ऑल दीज ब्लॉक्स सेपरेटली, ओके। सो फॉर दैट रीजन व्हाट आई नीड,
I need to add a redundant bit. I need to add redundant bits in each and every blocks. Okay, so मेरा k1 plus redundant bit become my code word. Okay, so I call it code word as a n. I will denote my code word as a n. तो जिस तरीके से ये डेटा वर्ड है, तो रिडंडेंट बिट ऐड होने के बाद में जो बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कोड वर्ड. ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? पहले पहले मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक पहले Yes, समझ sir. में आया कि नहीं? Sir. हाँ सर. Yes, sir. ओके, ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज द डेटा वर्ड. ओके, these are called as the data word, and after adding the redundant bits it becomes the code word. okay, तो ये भाई साहब जो कोड वर्ड है, अब क्या करेंगे हम लोग, इस कोड वर्ड को भेजेंगे हमारे रिसीवर भाई साहब को. ठीक है, तो हमारा रिसीवर भाई साहब लेगा इसको, n को लेगा, n में से क्या करेगा, वो रिडंडेंट बिट को निकालेगा. जैसे इसके पास में n है और n इज इक्वल टू क्या है, बेसिकली k1 प्लस r है. ठीक है, तो बेसिकली आपका जो रिसीवर रिसीव करने के बाद में आफ्टर रिसीविंग दिस पर्टिकुलर कोड, अच्छा ये इट बिकम्स n1. ओके, इट बिकम्स n1. ठीक है, तो बिकॉज दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक का एडिशन. तो ये क्या करेगा, रिडंडेंट बिट को क्या करेगा, रिमूव करेगा, एंड इट को क्या मिलेगा, k1. ठीक है, तो ये k1 को लेगा और आगे प्रोसेस करके यहाँ पे लाइन में लगा देगा, तो ये आ गया k1. फिर आएगा आपका दूसरा ब्लॉक, दैट इज k2 प्लस एक रिडंडेंट बिट. ओके, रिडंडेंट बिट कैन बी एनीथिंग. ठीक है, यू नो दिस इज फुली डिपेंड ऑन द डेटा वर्ड. आप बोलेंगे सर ये r1 r2 क्यों नहीं लिखे? r1 r2 अगर लिख देंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा. आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, नॉट एन इश्यू, बट आई एम नॉट राइटिंग एनीथिंग. why I'm not writing anything? Because you are what kind of redundant bit, you are going to add into the data word, that is fully depend on the data word. ठीक है, आपका जो डेटा वर्ड है ये जो होगा उसके हिसाब से ही आपका रिडंडेंट बिट ऐड होगा. मैं आपको आगे चल के एग्जांपल भी दूंगा. ठीक है, तो K2 के अंदर हम लोग ने R ऐड किए एंड इट बिकम्स N2. इसको भी फिर सेंड किए, रिसीवर ने रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद में ये आपका N2 इज इक्वल टू K2 प्लस R. R को रिमूव किया, K2 मिल गया, K2 को यहाँ पे लाइन से लगा दिया. ठीक है, उसके बाद में फिर आपका भाई साहब आपका इसी तरह K3 भी आया और इसी तरीके से K4 भी आया. तो रिसीवर हैज रिसीव्ड ऑल द ब्लॉक्स K3 एंड K4. ठीक है, और उसके बाद में एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना के ऊपर उसने प्रेजेंट कर दिया. ठीक है, सो एरर आपका ये जो टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक कोडिंग, इस टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक कोडिंग टेक्निक. ओके, सो वी ऐड द रिडंडेंट बिट्स टू द ईच ब्लॉक. क्या बोल रहा है ये, ईच ब्लॉक जिसे हम लोगों ने ऐड किया अभी, टू मेक द लेंथ n इक्वल्स टू k प्लस r. ठीक है, तो n1 इक्वल्स टू k1 प्लस r1 जो बोल दो, फिर n2 इज इक्वल टू k2 प्लस r2 बोल दो. ठीक है, तो इस तरीके से आपका सारे ब्लॉक्स में द रिजल्टिंग n बिट्स ब्लॉक्स आर कॉल्ड द कोड वर्ड. ओके, इस तरीके से कंप्लीट डेटा को डिवाइड करने के बाद में आपको ब्लॉक्स मिले, 1 2 3 एंड 4 ब्लॉक्स मिले. आपने इन जो ब्लॉक्स को बोला है डेटा वर्ड, इन ब्लॉक्स को आपने बोला डेटा वर्ड. तो इनमें रिडंडेंट बिट ऐड होने के बाद में प्लस r होने के बाद में जब ये ब्लॉक्स हमको यहाँ पर मिलेंगे 1 2 3 4, ठीक है, तो ये ब्लॉक्स मिलेंगे, इनको हम बोलेंगे कोड वर्ड. ठीक है, सॉरी, तो कोड वर्ड तो ऐड होने के बाद में यही मिलेंगे, दीज आर दी कोड वर्ड. और कोड वर्ड में से हम लोग क्या करेंगे, -r करेंगे, और तो हम लोग को मिल जाएगा डेटा वर्ड. ठीक है, तो 4 डेटा वर्ड्स हम लोग को मिल जाएंगे, अगेन डेटा वर्ड मिल जाएंगे. ओके, सो इन दिस वे चलो आगे देखते हैं. ये ब्लॉक कोडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके लिए. एरर डिटेक्शन इन ब्लॉक कोडिंग. अब इसके अंदर एरर डिटेक्शन कैसे करते हैं, दिस इज अ सिंपल ब्लॉक कोडिंग का डायग्राम है. इफ एग्जामिनेशन में अगर आपको कहीं पर भी इस बारे में ऐसा क्वेश्चन आता है ब्लॉक कोडिंग के, सो यू मस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, बिकॉज दिस डायग्राम इज द वन फ्रॉम विच यू कैन समझा सकते हो, सामने वाले को बहुत अच्छे से समझा सकते हो. ठीक है, अभी मैं वापस पेन ले लेता हूँ, यहाँ पर इतनी बड़ी पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है. Okay, so just imagine this is at the center side, this is at the center side, and this is at the receiver side. Okay, so what we have done, we have divided our data. Acha, this complete part, this complete section is called as the encoder part. Okay, and this is at the receiver side, so we call it as a decoder part, as you all know. Okay, so we were having some kind of data, like we were having some video file, audio file, उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया 4 ब्लॉक्स में. ठीक है, each one can be called as a K1, K2
A3 and K4. Okay, so I will take the K1 first. Okay, तो हम लोग ने K1 को first लिया. So this is my data word now. Okay, तो अब इस data word I will call it as a data word which is of K bit. Okay, so that data word I will give that data word to a generator. Okay, I have a module called as a generator. Okay, it will do something, it will do some sort of calculation which we don't know. Okay, it is depend on the type of coding, it is depend on the type of mechanism for the error detection and correction. ठीक है, तो यहाँ पर एक जनरल डायग्राम है खाली. Okay, so this is a very general diagram that we have some kind of module which we call it as a generator. Okay, and that generator is going to do some sort of calculation on that data word. Okay, तो ये कैलकुलेशन करेगा और आपको प्रोवाइड करेगा डेटा वर्ड. दैट डेटा वर्ड विल बी सेंड टू द दैट डेटा वर्ड विल बी सेंड टू द सॉरी डेटा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, कोड वर्ड, बिकॉज डेटा वर्ड के अंदर कुछ तो ऐड हुआ, तो ऐड होने के बाद में ये बन गया कोड वर्ड. नाउ दैट कोड वर्ड विल बी सेंड टू द रिसीवर साइड. रिसीवर विल रिसीव दैट पर्टिकुलर कोड वर्ड विच इज ऑफ n बिट, जिसको हम लोग ने बोला है. ठीक है, तो ये रिसीव करेगा एंड देन वी हैव अगेन वी हैव अ मॉड्यूल एज अ चेकर इन द डिकोडर पार्ट. वी हैव अ मॉड्यूल कॉल्ड एज चेकर which will discard or which will accept. Okay, so agar if the data is correct, if it is not corrupted, then it will be accepted and the redundant bits जो भी रहेंगे, जो redundant bits रहेंगे that will be extracted and the data word will be given to the receiver. Okay, अगर उसमें एरर कुछ है तो वो क्या करेगा, आपके डेटा को डिस्कार्ड कर देगा. So this is just a simple module from which you can explain the process of error detection in the block coding. Okay, तो block coding में है कुछ नहीं ज़्यादा, बस जो मैंने आपको बताया बस वही है, कुछ अलग से कुछ भी नहीं. ठीक है, you have a data divided into blocks, called it as a data word, defined as a K. ठीक है, we add the redundant bits into the data word, so K plus R it becomes N. N मतलब क्या, आपका कोड वर्ड. ठीक है, कोड वर्ड को भेजेंगे रिसीवर के पास, रिसीवर कोड वर्ड रिसीव करेगा, उसमें से रिडंडेंट बिट्स निकाल लेगा और डेटा वर्ड ले लेगा, सारे डेटा वर्ड को जमा करेगा, बना के फिर मिल जाएगा हम लोग को अपना डेटा. दैट्स ऑल फॉर द ब्लॉक कोडिंग. ओके, तो ये डायग्राम हो गया, उसी का ये पूरा एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर. ठीक है, हैमिंग डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, टाइमिंग हो गया है, एक्स्ट्रा भी जा रहा है. जस्ट ये आपका हैमिंग डिस्टेंस एक बार डिस्कस कर लेते हैं. How you can find out the Hamming distance of two codes? How you can find out the Hamming distance between the two words or two data word? दोनों के बीच में आप लोग कैसे निकालेंगे? It can be defined as the d x comma y. So x or y are the two data word, and you need to find the Hamming distance between these two one. Either you can do one thing, you can XOR the operation. तो x XOR y. ठीक है, तो दोनों का XOR निकालेंगे तो आपको मिलेगा on the two words and count the number of ones in the result. Okay, so this is the method from which you can find out the Hamming distance between the two data word. Okay, यहाँ पर आई थिंक मैंने कुछ मैंने एग्जांपल भी रखा हूँ, एज यू कैन सी ओवर हियर कि हमारे दो डेटा वर्ड है 0 0 0 0 1 1. ओके, और इसका जो हैमिंग डिस्टेंस आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 0 0 0 और 0 1 1, इनका आप XOR निकालेंगे तो बोलो क्या आएगा, 0 1 1 0 1 1 0 0 0. Okay, how many numbers of ones are there? अरे how many number of ones are there? Only 2 ना. तो हमारा क्या हुआ, हैमिंग डिस्टेंस क्या हो गया, हैमिंग डिस्टेंस इज 2 फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. ऐसे ही आप लोग आगे निकालोगे 0 0 0 और 0 1 1 का निकाले. अरे ये तो हुआ ना, ये तो हो गया ना. हाँ, आगे फिर अगर आप और का निकालेंगे 1 0 1 0 1, जस्ट टू लेट यू नो, बिकॉज आपको तो खैर पता ही है, आपने हैमिंग कोड भी किया है. यू नो, दिस इज जस्ट टू फाइंड द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू कोड. एग्जाम में वाइवा क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर पूछते हैं. ठीक है, ये दो कोड देंगे आपको और बोलेंगे भाई इनका हैमिंग डिस्टेंस निकालो, तो आपको XOR ऑपरेशन आना चाहिए. 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0. हाउ मेनी तो वंस इसमें है 3 1, सो हैमिंग डिस्टेंस इज 3. यहाँ पर देखो आपके 3 1 मिला है. ठीक है, तो ये बस इसमें छोटी छोटी चीज़ें, इसके लिए मैं आपको एकदम लेके जा रहा हूँ. लीनियर ब्लॉक कोड है, पैरिटी, ये लीनियर ब्लॉक कोड तो छोड़ेंगे हम लोग. विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर, विल स्टार्ट विद द पैरिटी चेक कोड. ओके, दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन. वाइवा में पूछते हैं पैरिटी चेक कोड क्या है. ठीक है, तो आई थिंक टाइम ज़्यादा हो गया है, वी विल स्टॉप ओवर हियर. लेट्स स्टार्ट.
आई होप आज के लेक्चर में आपको समझाऊंगा क्या क्या हम लोगों ने किया आज, ठीक है। सो वी लर्न अबाउट द एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन मैकेनिज्म। उसके अंदर वी हैव गॉन थ्रू द रिडंडेंसी, फर्स्ट ऑफ ऑल एरर, देन टाइप्स ऑफ एरर, एरर क्या है, देन टाइप्स ऑफ एरर क्या है, एंड आफ्टर टाइप्स ऑफ एरर